Namaskar and good evening and welcome to the Friday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. And to discuss the stories, we are now joined by economic analyst Puneet Jain. Welcome Puneet ji to Akashvani Studios. Thank you, Lalima. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा। Thank you very much, Amit. Let's begin with the headlines. India's equity benchmark indices surges to an all-time high. Sensex crosses 84,000 mark for the first time, while Nifty settles at 25,790. Household consumption poised to grow faster in the second quarter as headline inflation eases, reports the RBI bulletin. And crude oil prices on track to register its second straight week gain. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजारों में तेजी से सूचकांक नए रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज। सेंसेक्स पहली बार 84,000 के स्तर से पार दर्ज। निफ्टी 25,790 के नए सर्वोच्च स्तर पर दर्ज हुआ। रिजर्व बैंक के अनुसार दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में राहत से घरेलू खपत में तेजी रहने की संभावना और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह मजबूती। घरेलू शेयरों बाजारों में आज तेजी का माहौल रहा और सूचकांक नए रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.6% की मजबूती से 1,359 अंक उछलकर नए सर्वोच्च स्तर 84,544 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 84,694 के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को भी छुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.4% की बढ़त से 375 अंक बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर 25,790 के स्तर पर बंद हुआ। सत्र के दौरान निफ्टी भी 25,849 के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। The stocks in detail now. Well, India's domestic benchmark indices soared to new lifetime highs today amid strong global cues. Sensex touched a new high of 84,694 before settling at 84,544 with a 1.6% or 1,359 points growth. Meanwhile, the 50 stock index Nifty hit a record high of 25,849 before closing the trade at 25,790. Nifty index rose 1.4% or 375 points. In the NSE, 122 companies hit their 52-week high, 37 hit their 52-week low. In line with the equity market, the broader market at the BSE also ended higher, snapping its 3-day losing streak. The mid-cap index gained over 1%, while the small-cap index added 1.3%. In the Sensex index, 26 out of 30 companies logged gains. The top gainers were Mahindra & Mahindra, surged more than 5.5%. ICICI Bank as well as JSW Steel gained more than 3.5% and LT advanced more than 3%. Conversely, the top laggards today were SBI Bank, shed over 1%, IndusInd Bank lost 0.3% and TCS fell 0.2%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged gains. The top gainers today were Realty, increased more than 3%, Capital Goods added 2.3% and Auto increased 2.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as out of 4,059 companies, shares of 2,442 advanced and 1,502 declined and 115 remained unchanged. विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 11 पैसे की मजबूती से 83.57 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। उधर डॉलर इंडेक्स अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान 100.8 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, अगर शेयर बाजार के बारे में आज बात करें तो लगभग जैसा कि अभी लालिना ने बताया कि 122 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने साल भर का आपका सबसे ऊंचा स्तर आज प्राप्त किया है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो तकरीबन 37 कंपनियां ऐसी भी रहीं जिन्होंने अपने निचले स्तर को भी छुआ और
4,000 कंपनियों में से तकरीबन 2,500 कंपनियों के शेयरों ने आज तेजी की दौड़ को थामे रखा है। क्या माना जाए, अगर सेंसेक्स इतने ऊंचे स्तर पर है, कौन से कारण है? क्योंकि इतनी तेजी कभी न कभी कुछ संशय भी जगाती है और कुछ चिंताएं भी उत्पन्न करती है। क्या भारत की वाकई में, क्योंकि भी बहुत सारे जो वैश्विक स्तर पे, चाहे घरेलू स्तर पे देखें, महंगाई के स्तर पे राहत है, भारत की ग्रोथ स्टोरी में कहीं कोई संशय नहीं, कोई शुबह नहीं है। अमेरिका में बाजारों में जो एक्सपेक्टेड था कि वहां की ब्याज दरों में कटौती हो गई है, भारतीय बाजारों में भी मुद्रास्फीति, महंगाई दर बहुत हद तक काबू में है। और फिलहाल चूंकि मानसून का जो अंतिम दौर चल रहा है, उसकी वजह से शायद फौरी तौर पे कुछ खाद्य पदार्थों या सब्जियों की कीमतों में कुछ तेजी का दौर देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अब बाजार इस चीज को समझ चुका है कि ये सारे जो तात्कालिक प्रभाव हैं वो लंबी दौड़ के लिए कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा संक्षिप्त में जो मैक्रो फैक्टर्स हैं जो बाजार के तेजी का एक कारण बने हुए हैं और एक नए स्तर पर स्टॉक मार्केट्स छू रही हैं, और पर्टिकुलरली भारत में हमें ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में ऐसा नहीं है माहौल। कुछ चुनिंदा मार्केट्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जैसे अमेरिकन मार्केट्स हैं या इंडियन स्टॉक मार्केट है। अगर हम देखें तो चाइना में या फिलहाल हाल ही में जापान में जब तेजी के बाद बहुत बड़ी मंदी आई, वहां पर यूरोप में भी बहुत तेजी नहीं है बाजारों में। तो बहुत कम ऐसे बड़े बाजार हैं जो मेजर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जहां पर इतनी बड़ी अच्छी तेजी है। और भारत में जैसा हम कह सकते हैं गोल्डी लॉक सिचुएशन, यानी काफी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं जो लिक्विडिटी है, यानी निवेशक जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े तादाद में, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है मार्केट्स के अंदर और वो पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में। और साथ में हमने आज जो खास तौर से आज जो हमने देखा एक्शन, तो क्योंकि ग्लोबल कुछ इंडेक्सेस में भारत का जो वेटेज थी वो बढ़ी और आज बहुत बड़ी एफआईएस की बाइंग हुई। 14,000 करोड़ का आंकड़ा है कि एफआईएस ने आज बाइंग करी है भारतीय बाजारों में। तो कुल मिलाकर ये सब बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें चिंता का, जैसे आपने कहा कि चिंता की बात क्या है इसके अंदर, देखिए पहली चिंता की बात यह है कि ये जो यूफोरिया है, इस यूफोरिया के चलते जो वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक्स हैं वो करीब करीब इस वक्त मुझे लगता है कि पूरे विश्व में हम सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक मार्केट हैं। क्योंकि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक वैल्यूएशन का एक कॉमन एक पैरामीटर है, अगर उस पर देखें हम तो करीब अगले साल के जो अर्निंग्स का अनुमान है उसको लेकर देखें तो 29 से 30 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल भारतीय बाजारों का हो गया है, जो बहुत ज्यादा है। और जब हम देखेंगे कि विदेशी निवेशक इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए ये एक हर्डल हो जाता है, क्योंकि उनके पास आज चाइना अवेलेबल है जो कि 8 या 9 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है, या दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ब्राजील है, बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है और वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है स्टॉक्स की। तो हो सकता है कि जो आने वाले समय में जो निवेशक भारत में जो निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे विदेशी बाजारों में, अमेरिका में पर्टिकुलरली, तो वहां का पैसा जो है वो इमर्जिंग मार्केट में जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अगर हमारे बाजार बहुत एक्सपेंसिव हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत ज्यादा है, तो शायद वो एक अवरोध हो सकता है उस निवेश के भारत में आने में। तो मुझे एक ये जरूर चिंता लगती है कि हालांकि बहुत अच्छा है ये, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो कंपनीज की बहुत ज्यादा है और निवेशक जो है वो पूरी एहतियात नहीं बरत रहे हैं ये देखने में कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, कहां पर निवेश करना चाहिए। वो मैं कहूंगा कि वो भी खासतौर पे जो नए आईपीओ आ रहे हैं उसमें इस तरीके की बहुत सारी चिंताएं पहले भी आई हैं कि सिर्फ नाम देख के और तेजी की अवधारणा को देखते हुए निवेशक लगातार निवेश कर रहे हैं और इस बात से अछूते रहते हैं कि क्योंकि उनके पास म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा माध्यम है जहां पे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो निवेश की कम से कम कुछ तो सुरक्षा कर ही सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक माइंडसेट ट्रेडिंग का या क्विक गेन का माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजारों में ये खतरा रहता है कि वो अचानक बाजार गिरते हैं। और आज भी यदि आप बाजार को देखें, और हम तो क्योंकि बाजार को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, आज बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। बीच बीच में ऐसा समय आया जब निफ्टी में या सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई कुछ चंद मिनटों में, और कई बार बाजार में उतार चढ़ाव आया। तो ऐसे बाजार में खतरा रहता है। और दूसरा, अगर हम सेबी का जो आंकड़े आए हैं रिसेंटली कि जितने भी आईपीओ में निवेशक आए, रिटेल इन्वेस्टर्स आए, उसमें से 54%, 54% लोगों ने तो वो जो अलॉटमेंट आया वो कुछ ही दिनों में बेच दिया। यानी उनका कोई भी ये लंबे निवेश करने का उनका लक्ष्य नहीं था और वो सिर्फ ट्रेडिंग इस उम्मीद में कि हम कुछ प्रॉफिट फटाफट कमा लेंगे वो कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये खतरे की घंटी भी है, और हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा है, बट वी हैव टू बी कॉशियस। At the macro level, Puneetji, do you think that there would be greater flows of foreign money into the Indian equity markets due to high valuations of stocks?
some people are saying yes and some are saying no. What's your view? See, conceptually, if the valuations are very high and there are other similar markets which are available at lower valuations, the investors will tend to go to the other markets. Like I recently said, yes. Brazil is a very attractive market for investors now. If money is flowing out of USA, it will definitely go into emerging markets. And there is this fear that high valuations will be a hurdle for investors to come into India. Of course, they are all attracted by very high growth rates, and they are looking at the kind of opportunities that we have, because we have a very wide market. If you look at markets like Russia, of course, Russia, Western funds don't go and invest. But if you look at markets like Brazil, they have very high proportion of commodity stocks in those economies. India is an economy where we have companies in commodities, in manufacturing, in services. So it's a very wide base of industries in India. And therefore, it is an attractive market. I believe FII money will continue to flow into India. I'm not in that camp that it will not come. But हाई वैल्यूएशन विल बी लेकिन पुनीत, मेरे ख्याल से क्या ऐसा मानना हमारा के कारण पर्याप्त नहीं है कि भारत में बहुत सारी चीजें जो हैं सकारात्मक हैं, कि हमारी वृद्धि दर ग्रोथ रेट बहुत बेहतर है और लगातार जो है वो बनी हुई है सकारात्मक तौर पे। हमने महंगाई के दौर स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है, रिजर्व बैंक ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको बैलेंस किया, उसमें संतुलन साधा है। महंगाई के दर पे भी राहत है, चाहे हम मौसमी मार को भी अगर छोड़ दें उसके बावजूद भी। साथ ही साथ जैसा आपने भी जिक्र किया कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है या हमारा जो तेजी का दौर है वो कुछ सेक्टर तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, हम यहाँ पे सर्विसिंग भी करते हैं और हम यहाँ पे नए नए क्षेत्रों पे भी निवेश कर रहे हैं। अभी आज दोपहर में भी बहुत सारी चीजें, पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो नए स्पेस क्राफ्ट की भी जो नीतियां घोषित करी थी उसमें भी बहुत सारी, सीधे तौर पे अगर देखे जाएं तो एक दूसरा लक्ष्य है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे के लिए रोजगार और एक नए अवसर का प्रदान तो कर ही रही है। तो ये जो पूरा मिला जुला एक बास्केट है, ये जैसा आपने कहा कि यस बहुत पी मल्टीपल रेशियो, निश्चित तौर पे अगर 29 आज से 2 साल पहले किसी को बताया जाता तो शायद कोई निवेश करने के बारे में नहीं सोचता या एंटर करने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन आज अगर इतने ऊंचे लेवल पे भी लोग निवेश कर रहे हैं तो इसका क्या ये मानना का पर्याप्त कारण है कि भाई यहां पे जो चीज मिल रही है अगर अभी नहीं सवार हुए तो आप बस मिस कर देंगे? देखिए अमित, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आपने सही कहा और यही कारण है कि हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, वो भारत में आ रहे हैं। लेकिन जब हम आप मानिए कि एक तेज स्पीड पे कार चल रही है, अच्छा लगता है सभी को, लेकिन उसमें एक्सीडेंट होने के लिए चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें ये बहुत यहां पर कॉशियस होना चाहिए। बस मेरा कहना ये है, हम पॉजिटिव हैं, मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स इसमें बने रहें, लेकिन वो संभल कर इन्वेस्टमेंट करें, आंखें बंद करके, जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्कुल एकदम फटाफट की तेजी से हमको पैसा मिल जाए या बहुत जल्दी पैसा मिल जाए, या उनका लक्ष्य यह है कि आज शेयर खरीदूंगा और 3 दिन बाद बेचकर उसमें मुनाफा कमा लूंगा। मुझे लगता है वो जो एक सेगमेंट है उसको कॉशियस होने का बहुत जरूरत है, particularly अब इस नए स्तर पर। I think the corollary to Amit's question would be that we are a consumption-based economy. So with such huge numbers in a population, consumption to hogi, and add to that the kind of festivals we have, the kind of that gives a momentum. We have a marriage season, so seeing all that, we'll never go low. There'll be always something happening. ये जो अभी जो लालिमा ने बात कही, भारत में तकरीबन ये जो अभी वैवाहिक सीजन आने वाला है, तकरीबन पूरे भारत में 35 लाख विवाह उत्सव होने हैं। ये भी बहुत बड़ा अवसर है और बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें कई बिग फैट वेडिंग्स होंगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसको नंबर्स में अगर हम नापे तो देखिए, जो भारत की कंजम्पशन इकोनॉमी है वो ही हमारा एक ग्रोथ इंजन भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि लेकिन अगर उसको इकोनॉमिक सेंस में लूं मैं, वो ये है कि जो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो अब करीब $2,500 पर कैपिटा इनकम अब हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जिस भी देश ने, चाइना ने ये लेवल क्रॉस किया था सन 2000 में, और जब 2000 में उन्होंने ये लेवल क्रॉस किया $2,500 पर कैपिटा इनकम का, तो वहां से अगले 15 वर्ष वहां पर बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम जो है, वहां पर आपकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाती है और उसके बाद आप डिस्पोजेबल इनकम या कंजम्पशन के ऊपर खर्च करते हैं। भारत वो आंकड़ा क्रॉस कर रहा है, और जब हमारी जो इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन क्रॉस कर रही है, तो आप करीब $2,500 पर कैपिटा इनकम
इनकम है। तो इसलिए ये डेफिनेटली ये एक इकोनॉमिक फिनोमेना है, वेल नोन इकोनॉमिक फिनोमेना है कि जब भी ये लेवल क्रॉस होता है इनकम का तो कंजम्पशन बढ़ती है। हम भारत में भी वही देख रहे हैं। पर अगेन मैं यही कहूंगा कि ये यूफोरिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें संभलने की भी बहुत जरूरत है। पुनीत, जो बाजार की अभी फिलहाल के हालात हैं और जो अच्छे नए उत्साहजनक खबरें रोजाना मिल रही हैं, हम दूसरी तिमाही लगभग समाप्ति के अवसर पर हैं। तो जब दूसरी तिमाही अक्टूबर में जब त्योहारी सीजन भी शुरू हो जाएगा, उस समय हम कंपनी जगत के नतीजे भी देखने शुरू करेंगे। कितना स्वस्थ संकेत है बाजार की दिशा से, अगर दोनों को हम आपस में कहीं मिलाएं, तो क्या ये मानने के पर्याप्त कारण है कि दूसरी तिमाही में कंपनी जगत का प्रदर्शन, कंपनी जगत के नतीजे जरूर उत्साहजनक रहने वाले हैं? अमित, मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूं। क्योंकि कारण अगर आप देखें तो जो कमोडिटीज स्पेस थी ये 3 महीनों के लिए डिफिकल्ट रहे मेटल स्पेस में, क्योंकि काफी डंपिंग रही ओवरसीज कंपनी से। चाइना पर्टिकुलरली काफी बड़े पैमाने पर डंपिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की भी और कमोडिटीज की भी, और इसलिए भी एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई सरकार ने स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आज पूरे विश्व में जैसे चाइना में स्लो डाउन होगा तो चाइना अपने जो सामान है वो दूसरे देशों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डंप कर रहा है। अमेरिका में भी हमने देखा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखा है, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी देख रहे हैं, और वही हम ट्रेंड देख रहे हैं कमोडिटीज में। तो कंपनी जगत के लिए जो नंबर्स होंगे, मेरा अनुमान है कि बहुत ज्यादा कोई यूफोरिक नंबर नहीं होंगे। वो चैलेंजिंग नंबर्स रहेंगे, और जो मार्केट को यदि आप उससे अनुमान लगा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट तो लिक्विडिटी ड्रिवन है, मार्केट अभी नंबर्स को नहीं देख रही है। बट डेफिनेटली ये बाजार जो है वो बाजार में जो पूंजी की तरलता है वो अभी आपको 1 महीने बाद हम दोबारा से इस प्रोग्राम पर इस टॉपिक बात करेंगे, तो आप इसको याद करेंगे। तो हम जो आज बात कर रहे हैं कि कंपनी जगत के जो नंबर्स, मेरा अनुमान है उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये 3 महीने थोड़ा चैलेंजिंग रहे। जीडीपी भी ग्रोथ आप देखें तो नंबर्स थोड़े कम आए हैं उम्मीद से। लेकिन अभी भी जो ढांचागत सुविधाएं यानी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो खासतौर पे सरकार द्वारा निर्देशित होते हैं, उस पे जो सरकारी खर्च है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में है, और निरंतर सरकार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे लगातार निवेश कर रही है, खर्च कर रही है, जिससे बड़ी भारी संख्या में हमारा जो इंफ्रा सुविधाएं हैं वो भी डेवलप हो रही हैं, और साथ ही साथ बड़े मात्रा में रोजगार भी हो रहे हैं। और ये रोजगार एक केंद्रित नहीं है, ये पूरे देश में कहीं ना कहीं फैले हुए हैं। ये कितना सपोर्ट या सहायता कर पा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चा का बहुत बड़ा रोल रहा है। यदि हम कोई भी क्षेत्र की बात करें, रेलवेज पर्टिकुलरली, वहां पर बहुत मल्टीपल लेवल्स पर सरकार ने खर्चा किया, नई टेक्नोलॉजी पे भी खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा किया। और अगर हम देखें, चाहे हम रिफाइनरी सेक्टर की बात करें, चाहे हम रोड सेक्टर की बात करें, एक बहुत बड़े लेवल पर रोड्स, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सरकारी खर्चा जो है, मुझे लगता है पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट करता है। जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपेंडिचर है, वो मेरे हिसाब से वो लैग कर रहा है, वो अभी उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, और वहां पर अभी हमें काम करने की जरूरत है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि क्या भरोसा नहीं जगा पा रहा? जो निजी क्षेत्र है वो निवेश करे, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े कदम उठाए, क्या अभी भी उसको कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स हैं या कोई चुनौतियां उसको नजर आ रही हैं, या उसको अपना निवेश इतने लंबे दौर तक सुरक्षित नजर नहीं आ रहा? देखिए, प्राइवेट केपेक्स को साइकिल जो बढ़ने में, उसमें काफी सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स प्ले करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर नहीं चलते, एक्सपोर्ट मार्केट से बहुत क्लोजली लिंक्ड रहते हैं। और वहां पर तो देखिए अश्योर्ड रेवेन्यू नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक डिमांड एक फैक्टर जो है, कंजम्पशन जो है, वो फैक्टर नहीं रहता, उनके ग्लोबल फैक्टर्स उन्हें देखने पड़ते हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ग्लोबल फैक्टर्स बहुत चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबली आसान है। तो केपेक्स, जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है, वो थोड़ी संभल के रहती है। You talked about infrastructure. Well, Mr. Gadkari has said that logistics costs in India, which were 14 to 16% of GDP, while in China these were at 8% and at 12%. In Europe, we now plan to make it single digit in India because of all the investment which is going in the infrastructure, which is, I think, a positive sign, because it will be a sweet success once everything is complete. And also critical to development of the local economy, really. Yes, absolutely. And what was taking a few days to reach now takes a few weeks, as this come to in a few days, and I'm sure a few hours now, like Delhi to Mumbai. Now we're talking in terms of hours, not in terms of days.
चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई यूरोपीय बाजारों में। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मजबूती का दौर रहा। जापान के निक्के में 1.5% से अधिक की बढ़त रही। हांगकांग का हैंग सेंग 1%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक में 0.2% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में मामूली गिरावट भी नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मंदी का दौर रहा। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.8% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। और पुनीत, बहुत संक्षेप में अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन को छोड़ के बाकी सबका प्रदर्शन ठीक था। तो क्या ये अमेरिका में रेट कट का सीधा सीधा असर है या इसके अलावा कुछ और है? और यूरोप इसके साथ तालमेल बिठाता हुआ नहीं नजर आ रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि, और देखिए पहले तो एशियन मार्केट की हम बात करते हैं, चीन का बाजार छोड़ दीजिए क्योंकि चीन की इकोनॉमी एक अलग ही लूप में चल रही है, उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बिल्कुल अलग है और चीन का बाजार विश्व से इंटीग्रेटेड नहीं है। लेकिन बाकी एशियाई बाजारों में डेफिनेटली यूएस का जो हमने बात करी उसका असर, रेट कट का असर दिख रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में उम्मीद है कि वहां पर निवेश ज्यादा होगा। All right, let's take a look at the U.S. markets now. Well, the U.S. benchmark stocks rallied yesterday with S&P 500 and Dow Jones Industrial Average hitting their record closing highs following Federal Reserve's decision to start a rate-cutting cycle. Nasdaq Composite climbed more than 2.5%, S&P 500 gained more than 1.5%, and Dow Jones Industrial Average advanced more than 1%. Let's talk about the recent cut of the U.S. Fed. In principle, RBI follows the US Fed, but the governor has said that we play the game according to the local weather and pitch conditions. Which way do you think the RBI will go now? मोटे तौर पे ये माना जाए कि भारत में हम ब्याज दरों में कटौती की कब उम्मीद करें? So, Lalima, I think RBI will this time play a little differently from the playbook used by US Fed, because the conditions in US are different from India. US is looking at a significant slowdown in economy actually, and that is why the US Fed has stepped up the rate cuts. But in India, I don't think RBI is facing those challenges. In fact, in India, we have this situation where banks are seeing a slowdown in deposits. So if we cut interest rates in India, I don't think it will really help economic growth. We are, as it is, doing okay. We are doing 7% GDP growth. So we don't need any kind of a stimulus, monetary stimulus right now. And it will be better for RBI to save its, keep its powder dry, so to say. Right. So RBI, I think this time will like to take it slow. We might see some easing in monetary policy vis-a-vis money supply, but I don't think interest rates is something which is on the agenda for RBI, at least for the next few months. Right. Household consumption is poised to grow faster in the second quarter of the current financial year as headline inflation eases, according to the monthly bulletin released by Reserve Bank of India today. The bulletin specified that the consumer price index CPI inflation came in below the central bank's tolerance band of 2 to 6% for the second consecutive month in August, but the food price volatility remained a contingent risk. It further shows that gap between credit and deposit growth is narrowing as banks are offering higher interest rates on deposits, with more than 2/3 of term deposits earning 7%. The data also highlights that RBI bought a net of $6.93 billion in the spot foreign exchange market in July. Talking about inflation, as you just said, yes, under control. RBI has done a good job on that, and it's been very cautious. Food price volatility will remain because of the weather. We have the monsoon seems to be never ending at the moment. It's just going on. Shravan ka mahina jaise kehte hain, abhi khincha ja raha hai. What do you have to say about the high interest rate on deposits? There is a liquidity crunch at the moment in banks, but that's temporary right now. So what has happened is, I don't know whether for good or for bad, a lot of households' financial savings are getting channelized to the stock markets and not to other instruments. And earlier the bank deposits was the primary source of savings for households, but we are seeing a crunch there. We are seeing less deposits going to banks, and therefore banks are forced to raise interest rates, to raise the deposits, and so that the credit growth can go on. It's a catch-22 actually for banks. We want money to go to productive sectors, but at the same time we want banks to be liquid. It's kind of a challenge. In fact, it has been underlined by the finance minister and RBI governor repeatedly in past months, and banks are trying to take steps to change the situation. RBI, of course, has been providing liquidity into a system through purchase of dollars. RBI could have allowed rupee to appreciate and could have let the dollars be in the system. But RBI has kept rupee kind of weak or stable around 84 by increasing monetary supply and buying dollars from the market. So RBI is managing liquidity very well with some objectives in mind, but it's a complex situation. Tightrope walk. लेकिन जो रिजर्व बैंक का जो अनुमान है कि जो हमारी घरेलू खपत है
वो निरंतर तेजी की ओर रहेगी। ये कितना स्वस्थ संकेत है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, ये मुझे लगता है ये तो बेडरॉक है, ये तो पिलर है जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है। यदि हम दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को देखें, ताइवान को देखते हैं, ताइवान एक बड़ी इकोनॉमी है, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, लेकिन घरेलू कंजम्पशन नहीं है, वो दूसरे बाजारों पर निर्भर करते हैं। भारत में अच्छी बात क्या है कि हम खुद ही ज्यादातर सामान बनाते हैं और खुद ही कंज्यूम करते हैं, तो एक इंटरनल एक स्ट्रेंथ है, और मुझे लगता है ये हमारी बाहरी दुनिया के शायद प्रभाव से बचा के भी रखती है, इंसुलेट करती है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। So sometimes population can be an asset. Right now, demographic dividend is what we are counting on. All right. Finance Minister Nirmala Sitharaman has urged the banks to explore creating deeper digital opportunities and utilize Unified Payments Interface, UPI as we call it, as a transformative innovation to empower millions, as UPI has received global recognition. While speaking at an event in Pune today, the Finance Minister said that India's UPI currently drives 45% of global digital payments. ये भी जो तकनीक का जो एक तरीके से बहुत बेहतर उपयोग है वो भारतीयों ने किया है, और यूपीआई इसके माध्यम से तो बहुत बड़ा एक बेंचमार्क स्थापित कर मुझे लगता है कि जीडीपी जो ग्रोथ की हम बात करते हैं कि इतना बड़ा जंप आया, उसमें यूपीआई जैसी जो तकनीक है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। All right, a look at the oil prices now. Well, oil prices eased today, but were on track to register again for the second straight week following Fed's rate cut. In the global crude market, Brent crude was trading more than 0.5% down at $74.49 per barrel, and the U.S. West Texas Intermediate WTI was also trading 0.2% down at $71.75 per barrel when reports last came in. Puneet, normally much of our expenditure goes on importing oil. When the oil prices come down, how much impact does it have on our economy? Because agreements are signed much before, or does it have an immediate impact? So fortunately, while oil, of course, is a major item of our imports, and we spend about $200 billion a year on importing oil, the truth is that oil as a percentage of our overall expenditure or foreign exchange, that impact has come down, and it is kind of, we have been insulated because of software exports and other forex earnings. So while oil continues to be an important item for us, it is no longer the dominant item. No, we look beyond oil. Fortunately, also oil prices have been very stable in the last many months. So we have the positive there. Yes, it's been hovering around this only. Absolutely. For a long time. And it's quite benign actually, if you ask me. नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। शाम को 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.6% बढ़कर 74,220 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.2% की बढ़त से 90,160 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोना का वायदा भाव 0.6% की बढ़त से 73,889 रुपए प्रति 10 ग्राम पे रहा, जबकि चांदी भी 2% की बढ़त से 90,209 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। सोना चांदी, देखिए हम बात करने, आपको भी शायद याद होगा कुछ महीने पहले हम $2,000 के आसपास सोने की वैश्विक भावों के बारे में बात कर रहे थे, जो 2,500 तक पहुंच गया। चांदी जब हम $20-22 की बात करते तो वो $30 के स्तर पर आ गई। अभी भी बाजार में इस तरीके के बहुत सारे मेरे मित्र, शायद आपके भी लोग बोलते होंगे कि चांदी पहले 1 लाख पहुंचेगी कि सोना। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है सेंसेक्स लॉन्ग टर्म में तो कंपाउंडिंग ज्यादा बेटर रेट पे करता है, पर मुझे लगता है जो सोना चांदी की चाल है वो अभी ऊपर रहेगी, क्योंकि खासतौर से डॉलर इंडेक्स जो है वो गिर रहा है, और जब भी डॉलर इंडेक्स गिरता है तो सोना चांदी में हम तेजी देखते हैं। 2,500 का स्तर अगर हम बात करें, $2,500 अगर वैश्विक बाजार में ऑन्स के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं मुझे जगाता है। नहीं, देखिए ये क्योंकि एक मनी फ्लो बहुत ज्यादा है, और अगर वहां डॉलर से पैसा निकल रहा है, डॉलर इंडेक्स 105 वाला करीब 100-101 आ गया है, तो वो नेचुरल बात है, वो कमोडिटीज में या गोल्ड में खासतौर से वो इन्वेस्टमेंट। तो मोटे तौर पर आपका मानना है कि रिजर्व बैंक जो है कहीं ना कहीं रुपए को संभाले रखेगा, वो $84 के आसपास बहुत कंफर्टेबल है, वो मैनेज कर सकते हैं, हम उसको स्टेबल रख रहे हैं। तो अभी चूंकि अभी वैवाहिक सीजन पे आ जाएंगे, बहुत संक्षेप में अगर क्या सोना में कुछ और तेजी नजर आएगी? मुझे लगता है कि सोने में भी मजबूती बनी रहेगी। चलिए पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। India's equity benchmark indices surges to an all-time high. Sensex crosses 84,000 mark for the first time, while Nifty settles at 25,790. Household consumption poised to grow faster in the second quarter as headline inflation
eases, reports RBI bulletin. And crude oil prices on track to register its second straight week gain. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goel signing off. Namaskar. Market Mantra.